Science, technology and innovation policy was introduced in India in 2013, and that is popularly known as STI 2030. Okay, so why this policy was made, what is the reason behind it, and what are the changes made in India by using this policy? We are going to discuss about it, right? So it is the STI जो है आपका 2013, it seeks to send a signal to the Indian scientific community that both to the private and public domain, means it is basically giving the indication to the private companies, public companies, and it is basically indicating about the innovation, science, and what changes we can make within the company, right? And it focuses on what it focuses. It focuses on the faster, sustainable, and inclusive development of the people. So basically they focused on science and technology. Its name is even suggesting that science, technology and innovation, on these three they are focusing, ठीक है? And they want to make बोल सकते हैं better environment in which sense in technological environment, and provide the services to the consumers and people. So STI basically focuses, which I discussed in the last class, on one statement they focus. क्या उन्होंने एक statement use किया था, आप लोगों को याद होगा, that STI basically focuses on both for people and people for STI. STI for people and people for STI. यानी STI किसके लिए? लोगों के लिए, और लोग किसके लिए? STI के लिए. So they focuses on the people, sustainable development, innovation, right? It aims to bring all the benefit. मतलब इनका aim क्या था कि सारे benefits जो भी science के through experiment, innovations, invention के through आप जितना दे सके nation को, जो national development के लिए, sustainable development के लिए, inclusive growth के लिए helpful हो, ठीक है? So this policy basically focuses, इस policy ने बहुत सारी companies को बता दिया that what is the utilization of R&D, research and development का क्या utilization है, STI policy ने basically indicate किया और उनको इसका importance बताया. तो this policy is basically why this is introduced. We understand for growth, for national development, for sustainable development, for providing better or efficient to the public, to the consumers, ठीक है? So this is STI. ये सारे objectives और reason थे STI को लाने का. Now let's move toward the what are the various features under STI. STI के under में कौन-कौन, STI के कौन-कौन से features हैं, not under it, STI के क्या-क्या features हैं? What are the features of STI policy 2013? First one is to promoting the spread of the scientific temper amongst all the section of society. So providing the utilization of the technology in the society for promoting the scientific tools, scientific technique of utilizing the technology. The first reason is that promotion करना technology का, ठीक है? हर एक section में, हर एक society में, हर एक sector में, ठीक है? So this is the first feature of STI policy. The second one is enhancing skills for application of science among the young from all social sector. So enhance करना, बढ़ाना skill को, किसके skill को? Basically young लोगों के skill को, कि वो कैसे science को और उसके applications को use कर पाए. ये जितने आप लोग app बोलते हो ना जिसको, ये सारे app का मतलब है application, ठीक है? तो शॉर्टकट में हम लोग इसको ऐप बोलते हैं. तो ये किस तरीके से हम एप्लीकेशन को यूज करें, कैसे हम साइंस को यूटिलाइज करें, बेसिकली यंग जनरेशन को मोटिवेट करना, फॉर दिस enhance करना उनके स्किल को, उनके टेक्निकल नॉलेज को. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ STI पॉलिसी. नाउ द थर्ड वन इज making careers in science, research, innovation attractive enough for talented and bright minds. So we can say
दैट हम अपने मतलब करियर की तरफ डायरेक्शन प्रोवाइड करना पीपल को कि दे कैन मेक देयर करियर इन द साइंस रिसर्च एज वेल एज द मतलब एक अट्रैक्टिवनेस, मतलब एक प्रोवाइड करना, स्कोप प्रोवाइड करना कि आपको साइंस के बाद कितना ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, राइट? सो मेकिंग करियर्स इन साइंस रिसर्च इनोवेशन attractive enough for talented and the bright mind. The people who are very much talented, they are basically better utilized in the scientific field. So इनको भी promote करना, इनको inspire करना कि वो अपने career को science के field में बनाए, ठीक है? So this is the third feature of STI. So if you want to learn all these things with a single keyword, for the first point you can use, पहले में आप क्या यूज कर सकते हो? प्रमोशन. सो प्रमोशन किसका प्रमोशन? पूरे सोसाइटी का, सेक्शन का, साइंटिफिक यूटिलाइजेशन के लिए. सेकेंड वन है इनहांसिंग स्किल. अब किसके स्किल को इनहांस करना? यंग पीपल को, कि वो कैसे एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है? Now the third point is career. So with career you can basically, this policy is saying that कि आप करियर जो है वो किसमें बना सकते हैं? साइंस में, रिसर्च में, इनोवेशन में, जो ब्राइट माइंड को अट्रैक्ट करेगा, मतलब करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है? उनको बताना कि यू हैव सो मच करियर एंड ऑप्शंस इन द साइंस बैकग्राउंड. यस प्रत्यय. फर्स्ट पॉइंट में प्रमोशन द स्पीड ऑफ साइंटिफिक टेम्पर. यहाँ टेम्पर का मतलब वही टेक्नोलॉजी हुआ या कुछ और हुआ? साइंटिफिक टेम्पर मतलब कि लोगों की मेंटालिटी चेंज होना, साइंटिफिकली सोचने, मतलब एक तरीके से प्रमोट करना स्प्रेड ऑफ द साइंटिफिक टेम्पर, कि मतलब साइंटिफिक यूटिलाइजेशन कितना ज्यादा है, इस हिसाब से प्रमोशन करना सारे सोसाइटी में, मतलब यूटिलाइजेशन करना साइंटिफिक नॉलेज का, ठीक है? प्रत्यय. The scientific temper जो है it is related with the scientific nature, ठीक है? साइंटिफिक नेचर से रिलेटेड है ये. प्रत्यय क्लियर हो गया बच्चे? यस मैम, क्लियर. हाँ, तो I guess 3 points are clear. These features are clear. The first point, how we can recognize it through promotion. Second point, enhancing skill, ठीक है? Third point, career options, right? Next one is establishing the world-class R&D infrastructure for gaining the global leadership in some selected frontier areas of science. So the STI पॉलिसी का एक और बेसिकली मेन इनका रोल एक और चीज में था, ये और भी इनके कुछ फीचर्स थे कि ये चाहते थे कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेंटर्स बहुत सारे डेवलप हो इंडिया में, ताकि साइंटिफिक जब आपके R&D डिपार्टमेंट होगा तो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पे काम होगा, रिसर्च होगा तो एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंट होगा तो इन्वेंशन होगा, इन्वेंशन इज समथिंग which is going to give a positive impact to the society. अगर कुछ बेटर टेक्नोलॉजी आ जाएगा कंट्री में तो कहीं ना कहीं वो सबके लिए हेल्पफुल है, राइट? सो इनका एक और एम था कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे R&D को, हर एक जगह पे R&D की इंपॉर्टेंस को कन्वे करे, मैसेज कन्वे करे, R&D पे खर्च करे. इसीलिए जीडीपी में पहले 1% लगता था, मतलब इसका बजट 1% था, अब 2% कर दिया गया है, ठीक है? इंक्रीज कर दिया गया है. सो इनका एक और था कि वर्ल्ड क्लास R&D डिपार्टमेंट को स्टैब्लिश किया जाए. सो फोर्थ पॉइंट को याद कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर R&D या सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी लर्न कर सकते हो आप. और R&D होगा तो आप ग्लोबली जितना रिसर्च का काम चल रहा है, आप टेक्नोलॉजिकली कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांस इन्वेंशन कर सकते हो, राइट? और अगर आपने टेक्नोलॉजी कोई भी इन्वेंट किया और उसको दूसरे कंट्री तक पहुंचाया तो हमारी कंट्री में उसका प्रॉफिट, बेनिफिट और फी, लाइसेंस, बहुत सारी चीजों से बेनिफिट होगा, है ना? सो एस्टैब्लिश करना वर्ल्ड क्लास R&D, ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर R&D मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करना R&D डिपार्टमेंट के सेटअप के लिए, और R&D अच्छा बेटर होगा तो वी आर एबल टू कम्पीट इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है? तो आई गेस ये 4.4 जितने भी 4 पॉइंट्स मैंने बताए सबको क्लियर है? जितने भी पॉइंट्स क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? ओके.
And let me tell you one thing, let's move toward the next point, that is positioning India among the top 5 global scientific powers of 2000 by 2020. So one of the major goal of STI policy 2013 is that we just want a rank, हमें एक rank बनाना है 2020 तक कि हमारा position at least टॉप 5 ग्लोबल साइंटिफिक पावर्स में रहे। अभी ग्लोबल साइंटिफिक पावर्स में कौन कौन है? यूएसए है, चाइना है, रसा है, राइट? सो दे ऑल्सो, इंडिया ऑल्सो वांट थ्रू दिस पॉलिसी, देयर एम इज ऑल्सो टू गेट द पोजीशन इन द ग्लोबल साइंटिफिक पावर एंड इन टॉप 5 लिस्ट। ठीक है, 5 जो लिस्ट जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में, उसमें वो पोजीशन चाहता है। एंड दे ऑल्सो डिड समथिंग लाइक बाय इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ द ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशन 3.5 से 7%। तो जर्नल्स वगैरह इंक्रीज कर, जर्नल वगैरह भी उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे छापने, बोल सकते हैं प्रिंट करना शुरू कर दिया। So in short, we can say that they want to position themselves in the top 5 global scientific powers. So you can use the next word, that is positioning. That is positioning. ठीक है? I know that what do you want? सिर्फ STI पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो हमें 2013 के बाद के इंसिडेंट्स को याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हो? So you can write that मतलब till 2020 STI पॉलिसी का था कि हमें 5 साइंटिफिक ग्लोबल पोजीशन पावर, मतलब पोजीशनिंग चाहिए एक तरीके से। So you can use the word positioning. We can use the keyword, we can use that as positioning. Next one is linking the contribution of science research and innovation system with the inclusive economic growth agenda. Like what is the economic growth agenda? That the poverty decline करना, खत्म करना, eradicate करना, employment provide करना, social welfare के works करना। So somehow they want, through this policy, the feature is that there is a linking contribution link कर देना, किसके लिए? साइंस रिसर्च इनोवेशन सिस्टम को अपने इकोनॉमिक वेलफेयर या इकोनॉमिक ग्रोथ के एजेंडा के साथ, यानी किस तरीके से हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं उसके एजेंडा के साथ साइंस को लिंक करना। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ द STI पॉलिसी 2013। ठीक है, contribution of the science and research for what? For economic growth, linking these two things, मतलब दो चीजों को लिंक किया जा रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी को इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सो we can learn it, linking contribution of लिंकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन से भी याद रख लेना, ये लिंकिंग याद रख लेना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट शॉर्टकट में लिख लो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। Next one is creating an environment for enhanced private sector participation in R&D. So government is not solely want to do everything कि government सिर्फ government sector सिर्फ इसमें involve रहे, ऐसा कोई intention नहीं है STI policy को लाने का। They also want contribution from the private sector. ठीक है, so they want contribution from that and they want that they will also participate in the R&D. So creation of environment, ऐसा environment create करना जहां पर आपके public sector, private sector, government organization मिलकर R&D पर काम करें। ठीक है, so they want such kind of environment as well, मतलब enhance करना, better provide करना कि private sector भी contribute करना चाहे। Now the next point is ठीक है, enabling conversion of R&D output with societal and commercial application. So societal और commercial application कौन कौन से हो गए? जो भी आप मोबाइल पे एप्स वगैरह देखते हो, वेबसाइट हो गए, लिंक हो गए बहुत सारे। सो इन कन्वर्ट करना R&D का आउटपुट, मतलब R&D से जो चीज रिजल्ट हमें मिला उसको कन्वर्ट करना सोसाइटल और कॉमर्शियल एप्लीकेशन में, ताकि it will be a successful model and it establishing of new PPP structure. So in short, we can understand that conversion of R&D output into the better application. In short, आप बस इतना याद रखिए कि conversion करना R&D output को, research and development का जो हमें result मिलेगा, जो हमें output मिलेगा,
उसको हम किस तरीके से सोसाइटी को प्रोवाइड करें, एप्लीकेशन के थ्रू कुछ ऐप बना दें, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को उस दिन उमंग ऐप के बारे में बताया था, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में बताया था। So these are the apps which is provided by the government. Even there are so many apps of the banks as well. बैंक ने भी बहुत सारे ऐप दे निकाला है। उसके अलावा there are so many private companies whose apps are there. There are so many facilitative apps भी बहुत सारे हैं आपके। कुछ कॉमर्शियल ऐप भी हैं जिसको यूज करने के लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ता है। सो इस कन्वर्ट करना R&D के आउटपुट को एप्लीकेशन के फॉर्म में। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एम और फीचर ऑफ द STI policy. Now next one is seeking S&T, science and technology, based on the high risk innovation through new mechanism. मतलब taking risk through science and technology, we can innovate something better. Next one is fostering resources optimize cost effective innovations across science and technology domain. तो मतलब रिसोर्स ऑप्टिमाइज मतलब कह सकते हैं कि फॉस्टर करना, इंक्रीज करना, बेटर करना रिसोर्स को, कि कैसे हम यूटिलाइज कर सके इनोवेशन को लो कॉस्ट पर, मतलब कॉस्ट भी कम लगे और हम इजिली जो है रिसोर्स को यूटिलाइज कर पाए. सो वी कैन से ना दैट Zoom and so many apps are like that only, where we don't need to pay very large amount to getting the facility of the technology, but we are able to take it, right? So बोल सकते हैं कि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन को ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाना, या जहां पर हमें लो कॉस्ट में बेटर टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करने का मौका मिले, रिसोर्स को अच्छे से हम ऑप्टिमाइज कर पाए, यूटिलाइज कर पाए. नेक्स्ट वन इज ट्रिगरिंग इन द माइंडसेट एंड वैल्यू सिस्टम्स, mindset and value system to recognize, respect and reward performance which create wealth for S&T derived knowledge. तो मैंने वही चीज कहा कि लोगों के अंदर ये माइंडसेट लेकर आना, ताकि कोई भी रिसर्च और टेक्नोलॉजी जो है वो उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको इसका रिवॉर्ड भी मिले. अच्छा, कई बार 20 years तक the people are basically engaged in what? Engaged in experiment. But after getting the result, somehow maybe they are not rewarded. So that is a demotivating thing. So STI policies also aim to basically trigger, मतलब mindset को ट्रिग करना, किस चीज से रिलेटेड विद द रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट. लोग आपको पहचानेंगे इफ यू विल प्रोवाइड सम बेटर टू द सोसाइटी, इनोवेशन करेंगे, और साथ साथ में आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा परफॉर्मेंस के हिसाब से. एंड समहाउ लोगों का माइंडसेट बनाना कि S&T से वी कैन बेसिकली इंक्रीज आवर वेल्थ, means that is also beneficial for the commercial purpose, is with economic development, with social welfare, with career option. It is also helpful for increasing the wealth, ठीक है, which create wealth for S&T derived knowledge, ठीक है. And next one is creating a robust national innovation system. So national innovation system को better करना, create करना. These are the aims of STI. These are the features of STI. So how you can learn the point? The first one which I told you, that is promotion. Second one is enhancing skill. Third one is career scope. Fourth one is infrastructure for R&D. Fifth one is positioning. Sixth one is linking contribution. किसके किसके बीच में? Science and economic growth के बीच में. Creating क्या? Environment for what? For R&D. And next one is S&T based on high risk innovation through new mechanism. Seeking को इसको याद मत करना क्योंकि ये लर्न होगा नहीं seeking के थ्रू. फिर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज करना. फिर माइंडसेट वैल्यू सिस्टम को फॉर व्हाट? माइंडसेट और वैल्यू कैसे ट्रिक करना? बाय प्रोवाइडिंग द नॉलेज ऑफ, मतलब रिकॉग्नाइज रिस्पेक्ट मिलेगा हमें, रिवॉर्ड मिलेगा. सो फॉर दैट. And for national innovation system, last one you can learn with national innovation system. I guess ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे सबको? सारे पॉइंट क्लियर हो गए everyone? These are the features. तो features मतलब ये क्या करना चाहता है, किस तरीके से काम करेगा, ठीक है, how they will work. So these are the features. STI पॉलिसी को लाने का ये सारा फीचर्स है, वो किस तरीके से काम करेगा. जैसे एक बॉटल का फीचर क्या हो सकता है? Its color, its beauty, its size, right? The same thing is with the STI policy, that how it is going to work. Yes, Anku. In short, that is a kind of functions we can say. Yes, Anku. मैम लास्ट पॉइंट क्या बोली थी?
national innovation system for increasing the environment of national innovation system. इसका मतलब इसको एस्पिरेशन, इसका क्या रीजन है, एस्पिरेशन क्या है इसका, इसकी मतलब डिजायर क्या है इन शॉर्ट. तो फर्स्ट वन इज रेजिंग ग्रॉस एक्सपेंडिचर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं GERD. ठीक है, रेजिंग ग्रॉस एक्सपेंडिचर मतलब R&D में जहां पर पहले 1% खर्च होता था, अभी प्रेजेंट में मतलब raising gross expenditure in research development to 2% from the present of 1%. So पहले 1% जहां बजट का खर्च होता था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वहीं पर इसको बढ़ा करके 2% कर दिया गया है और इन्हांस किया गया है प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को भी. यानी अगर प्राइवेट सेक्टर चाहे तो दे कैन आल्सो इन्वेस्ट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट work, right? But the budget is given to the research and development now, that is 2%. Earlier it was 1%, right? Increasing the number of full-time equivalent FTE of R&D personnel in India by at least 66% of the present strength in 5 years. यानी 5 सालों में देखो, हमें स्किल्ड लोगों की भी तो जरूरत है ना. रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसे तो नहीं होगा हवा में. तो whom we required personnel or human resource we required, right? So they also basically want to increase, मतलब इसके थ्रू और भी क्या क्या चीजें हुई कि इंक्रीजिंग, बहुत सारे इंक्रीज हुआ, मतलब लगभग 66% एम्प्लॉयमेंट रेट आपके सेक्टर में, R&D के सेक्टर में 5 सालों में इंक्रीज करना हुआ 66% तक. 66%, यानी अगर अभी 50 है तो 50 का 66% 5 सालों में इंक्रीज किया. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ इनोवेशन स्पेशली फॉर वुमेन, डिफरेंशियली एबल्ड एंड डिसएडवांस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. सो इन शॉर्ट इट इंक्रीजिंग, इसने और क्या क्या चीजें की, इंक्रीज क्या चीज को, एक्सेसिबिलिटी जिसको हम यूज कर सके, एक्सेस कर सके. ठीक है, एक्सेसिबिलिटी को, अवेलेबिलिटी को, जो चीज हमें अवेलेबल हो पाए, जो चीज हमें मिल पाए. एक्सेस, जो चीज हमें हमारे आसपास हमें अवेलेबल हो, एक्सेस कर पाए, जिसको खरीद सके. अवेलेबल, मिले, आसपास मिले. ठीक है. एक्सेस इज रिलेटेड विद यूज, अवेलेबिलिटी इज रिलेटेड विद मतलब जो आसपास अवेलेबल हो, एंड अफोर्डेबिलिटी जिसको खरीद पाने का पैसा हो. ठीक है. सो अफोर्डेबिलिटी को इंक्रीज किया किसके, ऑफ इनोवेशंस को, और खास करके कौन इसको यूज कर पाए, विमेन, फिजिकली डिसेबल्ड पीपल और डिसएडवांटेज जो सेक्शन है सोसाइटी का, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है जैसे माइनॉरिटीज वगैरह जो है, उन वो भी इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें. इंक्रीज किया गया एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द इनोवेशन टू द विमेन, फिजिकली डिसेबल्ड एंड द disadvantaged section of the society. Now what is the mechanism that works for this? क्या mechanism था, किस तरीके से ये काम किया इसने, what was the mechanism or system that is used? First one is promoting spread of scientific temper, जो शायद मैंने आप लोगों को पहले ही बताया. mechanism is the same thing which is there in features, बट मैं एक बार फिर वही बता देती हूँ. प्रमोशन करना साइंटिफिक टेम्पर अमॉन्ग द सोसाइटी, इनहांस करना स्किल एप्लीकेशन का, करियर्स एंड साइंस, एवरीथिंग इज सेम. फैसिलिटेटिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन R&D सेंटर इन इंडिया एंड ओवरसीज. सो आई गेस एवरीथिंग मैकेनिज्म इज अराउंड, मतलब लगभग सेम ही है इसमें. ठीक है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में शेयर करना इन्वेस्टर्स, और ये तो आई गेस एवरीथिंग इज सेम इन दिस. डू यू थिंक एनी डिफरेंस इन there is in mechanism? So what is the how the policy is implemented? So implementation of proposal contain the policy will मतलब इसमें consultation की requirement, different government department, ministries, agencies, मतलब इस policy को implement करने से पहले, लागू करने के लिए ये proposals जो थे, implementation of the proposal contained in the policy जो था, consultation, बहुत सारे government मतलब department, ministry, agencies, सबसे पहले पूरा डिस्कशन हुआ है. उसके बाद फिर इसको 2 साल के बाद इस प्रपोजल को ऑपरेशनलाइज किया गया है, यानी कि इसको फिर लाया गया है. अकॉर्डिंगली DST will establish a policy implementation group to expeditiously operationalize the proposal within the next 2 years.
So how the policy was implemented? By the consultation of the various groups, different department, ministries, policy expertise. इनके बाद इस पॉलिसी को बनाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, लाया गया, बनाया गया, प्रपोजल को शो किया गया, प्रपोजल को फिर इम्प्लीमेंट किया गया। बैकड्रॉप क्या है? प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी हैड अनाउंस्ड द टेक्नोलॉजी प्रोसेस स्टेटमेंट एट द साइंस कांग्रेस इन जनवरी 1983। सो देयर इज, अगर इनकी बैकड्रॉप की बात करें तो पहले इंदिरा गांधी जी के शासन में एक बार टीपीएस को लाया गया था, टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट को, ठीक है, साइंस कांग्रेस के टाइम पे 1983 में, ठीक है। और इसका फोकस क्या था ना कि हम टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट बने। टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंट मतलब समझते हो कि हम टेक्नोलॉजिकल अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सके, हम दूसरे कंट्री में टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट ना रहे, बल्कि हम टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस बने, और साथ साथ में हम जो है वो सेल्फ रिलायंस हो, अपने ऊपर डिपेंडेंट हो टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। प्रॉपरली यूटिलाइज करना जाने टेक्नोलॉजी को, नए टेक्नोलॉजी को, नए इन्वेंशन करें और सेल्फ रिलायंस बने, ठीक है। सेवरल ऑफ द स्टेटमेंट टीपीएस वर इम्प्लीमेंटेड, और उसमें से जो भी टीपीएस जो आया था उसमें जो भी पॉइंट्स था उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया उस टाइम पर, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी फिर आया, एसटीपी आया, वो 2003 में आया, ठीक है। सब्सिक्वेंटली फिर बाद में एक और टेक्नोलॉजी के ऊपर पॉलिसी बनाया गया, एंड दैट वाज अनाउंस्ड इन 2003, और 2003 में उसको अनाउंस किया गया एसटीपी को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी को लाया गया 2003 में, ठीक है। और इसका मेन वही एम था, सीक करना, साइंस एंड टुगेदर को बोल सकते हैं, सीक करना, ब्रिंग करना, लाना। एंड इसका एक और भी, इट बेसिकली कॉल्ड फॉर integrating programs of socio-economic sector with the national R&D system, creation of national innovation system. So the aim of the STP model 2003 policy, STP से मुझे एक और भी मॉडल याद आ गया, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, तो मुझे एकदम से वही याद है, इसलिए एसटीपी मॉडल निकल गया मुझसे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी जो था दैट वाज अनाउंस्ड इन 2003, एंड इनका मेन एम क्या था? साइंस को और टेक्नोलॉजी को एक साथ लेकर आना, साइंस को, विज्ञान को और टेक्नोलॉजी को साथ लेकर आना। और इसका एक और नाम था, ये किस तरीके से इसका नाम लिया जाता था? इट इज कॉल्ड फॉर द इंटीग्रेटिंग प्रोग्राम ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर, ठीक है। उसके अलावा इन मतलब 2010-20 में भी इंडिया ने डिक्लेयर किया डिकेड ऑफ द इनोवेशन इंडियाज, ठीक है। इवन द डेमोग्राफिक थिंग्स वाज आल्सो चेंज्ड इन इंडिया, एंड इन 2013 द STI वाज approved by the union cabinet, and then it was basically we can say it was implemented in India. So what is the role of STI? I guess clear हो गया होगा सबको, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? Everyone? Yes, ma'am. सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. देखो मैं how this will work, मतलब how this operation is going to work. There are some mechanism which is deployed to realize the policy aspiration. और ये कुछ क्या क्या थे? पहला तो मैंने आप लोग को पहले क्लियर कर दिया, that is promoting the spread of the scientific temper, एक साइंटिफिक इन्वायरमेंट बनाना, चारों तरफ सेक्शन में, हर एक सोसाइटी में लेकर आना, पूरे सोसाइटी में जितने भी सेक्शन है उन सब के लिए, इट्स नॉट फॉर द रिच पीपल, फॉर एवरीवन, फॉर एवरी सेक्टर, ठीक है, फॉर एवरी क्लास ऑफ पीपल। नेक्स्ट था कि इनहांस करना स्किल ऑफ फॉर एप्लीकेशन, ऐप का स्किल इंक्रीज करना साइंस का, एंड वी आर एबल टू सी, वही एप्स वगैरह हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मेकिंग करियर, दैट आई ऑलरेडी इलैबोरेटेड, empowering women through appropriate STI inputs and investment. So motivating or empowering women through this by utilization of science and technology, ठीक है, science, technology and innovation input. So empowerment of women is also one of the aim for the STI model. Next one is it facilitating private sector investment in R&D center in India and overseas. What does it mean? मतलब कि फैसिलिटेट कर रहा है प्राइवेट सेक्टर को कि वो इन्वेस्टमेंट करे R&D में, और इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी। सो फैसिलिटेट करना प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को, प्रमोट करना R&D के एस्टैब्लिशमेंट को, R&D फैसिलिटीज को,
परमिट करना मल्टी स्टेक होल्डर्स। अच्छा, हु इज गोइंग टू टेल मी हु आर द स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स कौन होता है? हु आर स्टेक होल्डर्स? एनीवन? ओके, आई एम टेलिंग यू, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके कस्टमर्स, आपके एम्प्लॉइज, आपका गवर्नमेंट, आपकी कंट्री का गवर्नमेंट, आपके सप्लायर्स, ठीक है? तो ये सारे आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो परमिट करना मल्टी स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेशन इन इंडियन R&D सिस्टम, मतलब इंडियन R&D सिस्टम में मल्टीपल लोगों का योगदान होना, कॉन्ट्रीब्यूशन होना, गवर्नमेंट का, बाकी आपके एक्सपर्टीज का, स्किल्ड पीपल का, टेक्निकल एक्सपर्टीज पीपल का, कंसल्टेंट्स का, इन सब का रिक्वायरमेंट और वी कैन से पार्टिसिपेशन R&D सिस्टम में, वेरियस इकोनॉमिस्ट का, वेरियस टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर्स का, तो इन सब का मल्टी स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन परमिशन मिला आपके R&D से। नेक्स्ट वन इज treating R&D in the private sector at par and with public institution for availing the public fund. So R&D को उनका जो private sector था, they were basically investing through their company, and जो public institution था, they are availing public fund. मतलब प्राइवेट सेक्टर तो अपने फंड को यूटिलाइज कर रहा था जो उसने कंपनी में जो उनका अर्न हुआ, और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन था, दे आर बेसिकली गेटिंग फंड बाय पब्लिक फंड्स। पब्लिक फंड्स जो आपके गवर्नमेंट के पास जो फंड्स हैं उनसे। नेक्स्ट वन इज बेंचमार्किंग ऑफ R&D फंडिंग मैकेनिज्म एंड पैटर्न्स ग्लोबली, मतलब फंडिंग मैकेनिज्म को बेटर करना। उसके अलावा शेयरिंग ऑफ द IPRs बिटवीन द इन्वेंटर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर इन्वेंटर्स और इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है? IPR क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको तब आप प्रोवाइड कर सकते हो, एक लाइसेंसिंग सिस्टम है, जब आपने कोई इनोवेशन किया और उसको आप शेयर करना चाहते हो बाकी कंट्रीज के साथ। तो IPR की बात हो रही है, शेयरिंग ऑफ द IPRs किसके किसके बीच में? इन्वेंटर्स जिन्होंने इन्वेंट किया और जो उस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मतलब इन्वेस्टर्स और इन्वेंटर के बीच में IPR। यस, वन स्टूडेंट वाज रेजिंग द हैंड, प्लीज। मैम बेंचमार्क क्या होता है? क्वालिटी तैयार करना कि इन्वेस्टर्स कितना इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। बेंचमार्क मतलब कि सॉरी, इट इज नॉट रिलेटेड विद इन्वेस्टर्स, इट इज रिलेटेड विद बेंचमार्किंग ऑफ R&D, मतलब क्वालिटेटिव क्राइटेरिया यूज करना, किस तरीके से हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बना दिया, ठीक है। तो बेंचमार्क करना कि R&D का फंड मैकेनिज्म कहाँ से होगा, कौन कौन सोर्स से प्रोवाइड होगा, ठीक है। मतलब एक क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर देना, एक पॉलिसी बना देना। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। ठीक है। सो शेयरिंग ऑफ IPRs, जिन्होंने इन्वेस्टर्स ने, जिन्होंने पैसा लगाया आपके इन्वेंशन में और जिन्होंने इन्वेंट किया, उनके बीच में IPR बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना। जो इन्वेस्टर जिन्होंने आपके इन्वेंशन में पैसा लगाया होगा, उनका भी तो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, तो उनके पास IPR को शेयर करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को शेयर करना। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कि मैंने 5 लाख रुपए किसी इन्वेस्टर से लिया, मैंने कुछ इन्वेंट किया और उसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दैट विद द इन्वेस्टर, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो शेयर करना इन्वेस्टर्स और इन्वेंटर्स के बीच में IPR को, मॉडिफाई करना IPR पॉलिसी को, ठीक है। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ innovation with focus on the green manufacturing. What is green manufacturing? Where we are not harming the environment, so that is green manufacturing. So incentive वगैरह provide करना, commercialize करना innovations को, जिनका main focus green manufacturing पर है, यानी जो environment को protect करना चाहते हैं, उनके लिए incentives और innovations को commercialize करना, उनको innovations provide करना, उनको better facilities provide करना, जो basically focus कर रहे हैं green manufacturing पे, ठीक है। So, or forging the strategic partnership and alliances with the other nation through both bilateral and multilateral cooperation in the science, technology and innovation. So, doing the agreements between the countries के बीच में agreement करना, strategic partnership करना, ताकि दूसरे कंट्री का साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन हम अपनी कंट्री में यूज करें, हमारे कंट्री का साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन दूसरे कंट्री यूज कर पाए। सो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और अलायंसेस क्रिएट करना।
तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू ही आपका दिल्ली का मेट्रो को बनाया गया है, बिकॉज दैट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किसके बीच में होता है, जापान और इंडिया के बीच में, ठीक है। सो जिसके थ्रू वी आर एबल टू यूटिलाइज ऑफ साइंस ऑफ द अदर कंट्री, द टेक्नोलॉजी ऑफ द अदर कंट्री। एंड बाइलेटरल और मल्टीलेटरल का मतलब होता है बाइलेटरल जहां दो कंट्रीज आपस में डील करती हैं, जहां पार्टनरशिप करती है, मल्टीलेटरल जहां दो से ज्यादा कंट्रीज आपस में मिलकर के एग्रीमेंट बनाती है, दैट इज मल्टीलेटरल। So these are some points, and triggering the ecosystem, I already told you about this point. Mindset, values, governance, ठीक है, STI activities to recognize the respect and reward performances. Okay, so I guess these all points are clear. STI policy clear हो गया? STI policy clear हो गया सबको? Yes, ma'am. Okay. Social Yes, ma'am. implication is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Economic implication clear है? Yes, ma'am. Okay. Anyone have any doubt in any of the point, whatever we discussed? No, ma'am. There are some terminology which is related with this. Capital saving technology, labor intensive technology, alternate technology, self help technology, village level अच्छा village level technology में एक आपका ई चौपाल आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चौपाल जिसको हम कहते हैं ई चौपाल। प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, पीपल्स टेक्नोलॉजी। So there are multiple type of technology. So there are terminologies. ये सारे terminology एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। appropriate टेक्नोलॉजी क्या होता है और इसके जो टर्मिनोलॉजी है वो, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली in the next class we are going to complete the chapter. Okay. Yes, roll number 1. Okay, roll number 1, 2, 3, Present, ma'am. Roll number 3. 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6, 7, Present. 8, 9, Present, ma'am. Roll number 9. 10, Present, ma'am. Roll number 10. 11, 12, Present, ma'am. 13, Present, ma'am. 14, 15, 14 present, ma'am. 14. 15, 16, 17, 18, 19, Present, ma'am. 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, कोई बच्चा म्यूट है, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। 27, 28, 29, Present, ma'am. 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, Yes, ma'am. 44. ma'am. 43. 43, 44, Yes, ma'am. 44. 45, 46, Present, ma'am. 46. 47, Present, ma'am. 47. 48, Present, ma'am. 48. 49, Yes, ma'am. 49. 50, 51,
52, 52 present, ma'am. 53, 53 present, ma'am. 54, 55, Yes, ma'am. 55. 56, 57, 58, 59, Yes, ma'am. Present, ma'am. 58. 59, Ma'am, 58. Ma'am. 60, Yes, ma'am. 60. 61, 62, 63, 64, Present, ma'am. 64. 65, Present, ma'am. 61. 60, 65, 61 present, ma'am. बोले तो. okay, 65, 66, 67, 67 present, ma'am. 68, 69, 70, कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा. 70, 71, Yes, ma'am. 72, 21. 71. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 75 present, ma'am. 78, 79, 80. कौन क्या रोल Present, ma'am. 80, No, ma'am. 81. 81, 82, 82, 83, 79. 84, 85, Present, ma'am. 86, 85. 85, ma'am. Present. 86. ओके. सो अगर कुछ भी बच्चों को कोई भी बच्चा है जिनका रह गया तो एक एक करके मुझे बताओ. Ma'am, Ma'am, 79. 24. 24 and 79. I'm 77. 24, 79, 77. Ma'am, और 84 भी. एक मिनट 77, 79, 84 कौन है? कौन बच्चा है 84? मैम लीव हो गया वो. Ma'am, 24. ओके. नेक्स्ट एनीवन? Ma'am, roll number 40, ma'am. रोल नंबर 40. ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. रोल नंबर 40 कौन है? Ma'am, राशि सोनी. वो तो क्लास में थे ही नहीं वो बच्चा. मैम वो थी क्लास में, मैसेज कर उसका मैम लीव हो गया मैम. क्लास में वो लास्ट तक थी मैम. उसका नेटवर्क खत्म, मतलब नेटवर्क के ओके कारण ओके leave हो गया. ओके ओके Ma'am, 24. ओके. 24 कौन है? Deepa. वो हो चुका है, अटेंडेंस लग चुका है. मैम, Okay. 80. उसका अनम्यूट नहीं हो रहा. ओके कोई बात नहीं, मैंने लगा दिया 80 का. ऐसे भी सचिन है ना? ओके आई थिंक उसका Yes, मैंने लगा ma'am. दिया था. जस्ट वेट फॉर अ सेक. आई एम जस्ट ठीक है. ओके आई एम स्टॉप कर रही हूँ मैं.